کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی وہ کون سی سب سے پراسرار، سب سے عظیم اور سب سے ہیبتناک ہستی ہے جس کا انتظار آج پوری امت مسلمہ خون کے آنسو روتے ہوئے بے چینی اور طلب سے کر رہی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرب قیامت وہ کون سا ایسا درندہ صفت، ظالم اور خونخوار شخص ظاہر ہوگا جو انسانیت کی تذلیل کرے گا، جو حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا اور معصوم بچوں کو مولی گاجر کی طرح بے دردی سے ذبح کر دے گا، اور روئے زمین پر کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھے گا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں قیامت سے قبل مسلمانوں کی اس ہولناک اور تباہ کن جنگ کا، جس میں ایسے خوفناک جدید ہتھیار استعمال ہوں گے کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کی تاب نہ لا کر مردہ ہو کر زمین پر گریں گے اور زمین انسانوں کی لاشوں سے پٹ جائے گی؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ دجال کا وہ سب سے بڑا اور ہولناک فتنہ کب ظاہر ہوگا؟ وہ فتنہ جس کے خوف سے تمام انبیاء اپنی امت کو ڈراتے آئے ہیں، جسے ختم کرنے کے لیے کسی انسان یا فرشتے کو نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ آسمان سے براہ راست روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا۔ یہ وہ سنسنی خیز، روح کانپا دینے والے اور خاموش کر دینے والے سوالات ہیں جن کی حقیقت پر مبنی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے جوابات آج ہم آپ کو کسی کہانی یا قصے کی شکل میں نہیں بلکہ قرآن کریم اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشن اور اٹل حقیقتوں کی بنیاد پر مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، ایسی تفصیل جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق۔ تو معزز ناظرین، اپنے دل تھام لیجئے اور ایمان کو تازہ کرنے والی اس حیرت انگیز اور لرزہ خیز دستاویزی فلم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ احادیث اور اسلامی روایات میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے شام کے علاقے سے ایک نہایت خوفناک آدمی ظاہر ہوگا جسے سفیانی کہا جائے گا۔ یہ شخص انتہائی ظالم اور خونخوار ہوگا اور اس کی فوج کا بڑا حصہ قبیلہ بنو کلب سے ہوگا۔ وہ شام کے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لے گا اور اعلان کرے گا کہ آج سے شام میرا ہے، جو بھی میرے مقابلے پر آئے گا ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنی فوج کے ذریعے ایسا قتل عام کرے گا کہ عورتوں اور معصوم بچوں تک کو نہیں بخشے گا، حتیٰ کہ حاملہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ اس وقت شام، عراق اور اردن کے علاقوں میں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ جب سفیانی کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو سفیانی کو شکست دے گا اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ان کی پیشانی چوڑی اور ناک کھڑی اور خوبصورت ہوگی۔ اسی دوران عرب میں ایک اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب میں ایک خلیفہ کی موت کے بعد شدید اختلاف پیدا ہوگا اور قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے۔ لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ اسی ہنگامے میں امام مہدی ان فتنوں سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ وہ حرم میں طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ فوراً ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ شروع میں امام مہدی انکار کریں گے، مگر لوگوں کے اصرار پر وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں سے بیعت لیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی سفیانی کو مکہ میں اس بیعت کی خبر ملے گی، وہ فوراً شام سے امام مہدی کے خلاف ایک بھاری لشکر روانہ کر دے گا۔ یہ لشکر تیزی سے مکہ کی طرف بڑھنے لگے گا، لیکن جیسے ہی یہ لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدھا کے مقام پر پہنچے گا تو ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک واقعہ رونما ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اچانک زمین اس پورے لشکر کو نگل لے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک لمحے میں پورا کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور سوائے ایک شخص کے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا جو جا کر اس تباہی کی خبر دے گا۔ جب لوگ یہ عظیم نشانی دیکھیں گے تو انہیں مکمل یقین ہو جائے گا کہ یہی ہی وہ سچے امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی شام اور عراق کے نیک لوگ، ابدال اور مجاہدین بڑی تعداد میں آنے لگیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب مسلمانوں کی یہ عظیم فوج سفیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوگی۔
बहरा तबरिया के करीब एक इंतहाई खौफनाक जंग होगी जिसमें मुजाहिदीन सुफियानी के लश्कर को इबरतनाक शिकस्त देंगे और सुफियानी का खात्मा कर दिया जाएगा। सुफियानी के खात्मे से जुर्म का एक दौर तो खत्म हो जाएगा, मगर इसके फौरन बाद इससे कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक फितनों का आगाज होगा। अब इमाम मेहदी दमिश्क के करीब होता के मकाम पर मुसलमानों का हेडक्वार्टर कायम करेंगे, क्योंकि इसके बाद होने वाली है इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग, जिसे हदीस में अल मलहमतुल कुबरा कहा गया है। ईसाइयों के साथ मुसलमानों का एक अमन का मुआहिदा होगा और दोनों मिलकर एक तीसरे दुश्मन को शिकस्त देंगे। मगर जब फतह हासिल होगी तो एक ईसाई सलीब बुलंद करके कहेगा कि सलीब गालिब आ गई। इस पर एक मुसलमान को शदीद गुस्सा आएगा और वो इस ईसाई को कत्ल कर देगा। इसी लम्हे रोमी मुआहिदा तोड़ देंगे और जंग का ऐलान कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग में दुश्मन इसी झंडों तले जमा होकर आएगा और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे, यानी 9,60,000 का अजीम शान लश्कर। ये जंग आमाक या दाबिक के मैदान में होगी और इस कदर सख्त होगी कि मुसलमानों का लश्कर 3 हिस्सों में बंट जाएगा। 1/3 जंग से पीछे हट जाएंगे और शिकस्त कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। 1/3 मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद कर दिए जाएंगे और ये अल्लाह के नजदीक अफजल तरीन शुहदा होंगे और 3 तिहाई हिस्सा डटा रहेगा जो बिल आखिर अजीम शान फतह हासिल करेगा। अहादीस में ये भी आता है कि इस जंग में मशरिक के इलाके से काले झंडों वाला एक अजीम लश्कर इमाम मेहदी की मदद के लिए पहुंचेगा। रोमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद मुजाहिदीन आगे बढ़ेंगे और कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया को बगैर किसी जंग, तलवार या तीर के सिर्फ अल्लाह की तकबीर बुलंद करके फतह करेंगे। शहर की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी और मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे होंगे कि अचानक एक खौफनाक आवाज आएगी कि दज्जाल निकल आया है और वो तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। दज्जाल तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। वो मशरिक की जानिब से ईरान के शहर अस्फहान से निकलेगा और 70,000 यहूदी इसके पैरोकार होंगे जिन्होंने खास किस्म की चादरें ओढ़ रखी होंगी। दज्जाल एक जवान आदमी होगा। इसके बाल घुंघराले होंगे और वो एक आंख से काना होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान कफेरा लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ मोमिन बाआसानी पढ़ लेगा। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक दज्जाल इस दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा, लेकिन ये दिन आम नहीं होंगे। इसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल के पास इंतहाई खौफनाक ताकतें होंगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, बंजर जमीन को हुक्म देगा तो वो अपने खजाने बाहर निकाल देगी। वो लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों की शक्ल में शयातीन को पेश करके कहेगा कि मुझे रब मानो। जो कौम उसे रब मानेगी वो उन पर बारिशें बरसाएगा और जो इनकार करेगी उसे कहत और तबाही का शिकार कर देगा। दज्जाल इस कदर तेजी से सफर करेगा जैसे तेज हवा बादलों को उड़ाती है। मक्का और मदीना के सिवा वो दुनिया के हर शहर में जाएगा। जब वो मदीना पहुंचेगा तो मदीना के हर रास्ते पर फरिश्ते खड़े होंगे और वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। उस वक्त मदीना में 3 खौफनाक जलजले आएंगे और शहर में मौजूद हर काफिर और मुनाफिक डर कर दज्जाल के पास चला जाएगा। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा और मुसलमान उससे लड़ने के लिए दमिश्क में जमा होंगे, तब अल्लाह ताला का फैसला सादिर होगा। सुबह फजर की नमाज का वक्त होगा, इकामत हो चुकी होगी और इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। आपने हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े पहने होंगे और अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो मोतियों की तरह चमकते हुए कतरे गिरेंगे। इमाम मेहदी उन्हें देखकर पीछे हटेंगे और इमामत की गुजारिश करेंगे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नमाज की इकामत आपके लिए हुई है, आप ही पढ़ाएं, और वो इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे।
नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करने के लिए निकलेंगे। आपके सांस में इंतहाई पाकीज़ा खुशबू होगी और जिस काफिर तक आपके सांस की हवा पहुंचेगी वो वहीं मर जाएगा। दज्जाल उन्हें देखकर ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है और डर कर भागेगा। बिलाखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को फलस्तीन में बाबे लद के मकाम पर पकड़ लेंगे और अपने नेज़े से उसे जहन्नम वासिल कर देंगे। दज्जाल के खात्मे के बाद उसके तमाम साथी और यहूदी मारे जाएंगे। पत्थर और दरख्त भी पुकार कर कहेंगे कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक दुश्मन छुपा है, आओ और उसे कत्ल कर दो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दज्जाल की हलाकत और कुफ्र की तारीकी छुटने के बाद दुनिया एक ऐसे सुनहरे और मिसाली दौर में दाखिल होगी जिसका तसव्वुर भी आज नामुमकिन लगता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस जमीन पर 7 या 9 साल तक ऐसी अदल व इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी करेंगे कि जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा। हदीस मुबारका के मुताबिक ये वो वक्त होगा जब आसमान अपनी बरकतें बरसाएगा और जमीन अपने तमाम छुपे हुए खजाने उगल देगी। खुशहाली का ये आलम होगा कि एक शख्स सोने और चांदी से भरा थैला लेकर ज़कात देने निकलेगा, मगर उसे पूरी बस्ती में एक भी जरूरतमंद नहीं मिलेगा। लोगों के दिनों से कीना, हसद और दुश्मनी निकाल दी जाएगी। यहाँ तक कि दरिंदे अपनी दरिंदगी छोड़ देंगे। शेर और बकरियां एक ही घाट पर पानी पिएंगे और मासूम बच्चे जहरीले सांपों से ऐसे खेलेंगे जैसे खिलौनों से खेलते हैं, क्योंकि जमीन पर सिर्फ अमन का राज होगा। इमाम मेहदी की वफात के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के मामलात संभालेंगे और पूरी जमीन पर इस्लाम का आफाकी परचम लहरा जाएगा। ये वो दौर होगा जब इंसानियत अपनी महराज पर होगी। मोहतरम सामीन, ये तमाम रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात, ये खूनी जंगें और फिर ये अजीमुशान अमन, ये कोई फर्जी कहानियां या महज ख्याली किस्से नहीं हैं, बल्कि ये कायनात की सबसे सच्ची हस्ती जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई वो खबरें हैं जो पत्थर पर लकीर की तरह अटल हकीकतें हैं। जिस तेजी से आज दुनिया के जोग्राफियाई और सियासी हालात बदल रहे हैं, जिस तरह फितनों ने हमारे घरों में डेरे डाल लिए हैं, ये सब चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि वो वक्त शायद हमारी दहलीज पर आ चुका है। याद रखिए, दज्जाल का फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इससे बचने के लिए महज मालूमात काफी नहीं, बल्कि ईमान की पुख्तगी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस फितने का तोड़ बता दिया है। सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात। आज ही इरादा कीजिए कि आप और आपके घर वाले इन आयात को न सिर्फ हिफ्ज करेंगे, बल्कि हर जुमा की तिलावत को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेंगे। अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को और आने वाली नस्लों को दज्जाल के सहर और कुर्बे क़यामत के तमाम हौलनाक फितनों से अपनी पनाह में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये गहरी तहकीकी, सनसनीखेज और सबक आमोज दस्तावेजी फिल्म पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस पैगाम को सदका जारिया समझकर अपने अजीजों अकारिब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी का ईमान आपकी बदौलत महफूज हो सके। सूफीइज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी के इस तालीमी और रूहानी सफर में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मेजबान राजा मुश्ताक को अब इजाजत दीजिए। अपना और अपने ईमान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।